why do we still want to know about Netaji Subhash Chandra Bose's death in terms of where his body lies? I don't think he would have done anything very different from what Nehru did. अगर अंग्रेजी एजुकेशन नहीं आई होती इंडिया में तो दिस न्यू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वुडंट हैव कम हियर. Explain this further. Bose is a founding father. Bose wanted to play what you call the चाणक्य नीति. वो उन्होंने देखा कि अभी जो चल रहा है माहौल उसमें अंग्रेज जर्मनी के बिल्कुल दबाव में आ चुके हैं. हिटलर वाज विनिंग. इसके लिए वो हिटलर के पास गए. Talk a little about the Bose network. It's based on a particular period of Bose's life. From the time when he was house arrested, from the time he escapes, the time he journeys all the way to Germany, then all the way to Singapore, and is about to attack the British force. A life which could have had an alternate reality, an alternate direction. Do you think he and Nehru would have become political rivals? Take a moment to sort of give a brief about what this episode is going to be to the audience. Yeah. Since Independence Day has just gone by, Yeah. And I was reading a little about the history, and there are a lot of freedom fighters who fought for India's independence. There is Gandhi, there is Sardar Bhai Patel, there is Nehru. There are a lot of other freedom fighters who've fought for India's independence. But there is probably one name that strikes a chord that is a little mysterious to me. And the acknowledgement of that freedom fighters' quest to conquest is a little mysterious and still remains mysterious in history books, in podcasts, in news stories, in movies, etc. And one such freedom fighter, of course, I'm talking about is Netaji Subhash Chandra Bose. Right. And I wanted to talk to you a little about Bose, who Bose was, what did you see, who do you see Bose as, and just your understanding of who the freedom fighter was, and a lot of stories around Bose. Yeah. So to begin with, Joyda, who was Netaji Subhash Chandra Bose in your eyes? Subhash Chandra Bose was a wonderful combination of idealism and pragmatism. Why I say that? Idealism was to build an ideal society in India, a society based on socio-economic equality. But pragmatism was to go and do anything to reach the end. So for Bose, means justified the end. His difference with Gandhi was Gandhi used to believe that means is as important as the end. आप किस रास्ते चले हो वो उतना ही मायने रखता है कि आप कहाँ पहुँचे हो, किस तरह से चले हो, कहाँ कैसे चले हो. Bose used to believe that I need to reach that end by any means. If Germany can help me, then Germany. If Japan can help me, then Japan. If both of them won't help me, then Russia. Anyone and anybody, because my goal is first and foremost political independence. Then my next goal is socio-economic independence of my people. So his goal for independence was not just political independence. वो शुरुआत है. समाज में समानता लाना उनका मेन उद्देश्य था. Because he was a socialist. एक समाजवादी इंसान थे वो. और बेहद पढ़े लिखे इंसान थे. एक तरह से फिलोसोफर थे आप कह सकते हैं. वो उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ज़्यादातर बहुत पढ़े लिखे लोग थे. And they were born out of a very interesting contradiction. ये लोग ज़्यादा समझते हैं या मानते नहीं हैं इन चीज़ को कि अगर अंग्रेजी एजुकेशन नहीं आई होती इंडिया में तो दिस न्यू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वुडंट हैव कम हियर. Explain this further. What was our society? Our society was a feudal society. It was kings and emperors and nawabs. Correct. Our society was a casteist society. Our society was full of superstition and dogma and a lot of other things. And everybody was bowing to the king, bowing to the landlord. Like they believed that we are not equal. झुकने वाला जो society था, जो labor वाला society था, a lot of hierarchy in the society. Hierarchy and citizens नहीं थे, वो प्रजा थे. They were subjects. There was no central figure ruling
Yeah. इंडिया, Yep. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया. Hmm. बार बार हम इंडिया इंडिया करते हैं, लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले था ही नहीं. Hmm. इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? अलग अलग राज्य थे. Hmm. मुगलों का अलग राज था, मराठों का अलग था, राजपूतों का अलग था, चोला पल्लवा का अलग था, है ना, तक्षशिला का अलग था, आपका सिखों का अलग था, डोगरों का अलग था, पाल और सेन बंगाल की तरफ अलग थे, उड़ीसा में कलिंगा थे, सब अपने अपने राज थे. उन राज में जो लोग थे वो नागरिक नहीं थे, वो प्रजा थे. राजा जो कहेगा, जो करेगा, उनको वही मानना पड़ेगा. सही बात है ना. और आप उस समय अगर इतिहास पढ़े तो उस समय हमेशा राजा रजवाड़ों की इतिहास होती है, आम आदमी की इतिहास नहीं होती. आप जब भी देश की बात आप करते हैं आज के दौर में, तो आप देश के लोगों की बात करते हैं. इंडिया, एनी नेशन इज इट्स पीपल, यही कहते हैं ना हम, वी द पीपल. सही बात है. लेकिन तब आप कोई भी इतिहास पढ़ लीजिए, अलेक्जेंडर की बात पढ़ेंगे, लेकिन अलेक्जेंडर की मैसेडोनिया में लोगों की क्या हालत थी वो नहीं पढ़ेंगे. अब राणा प्रताप की बात पढ़ेंगे, लेकिन राणा प्रताप के चित्तौड़ में या उनके राज में लोगों की क्या हालत थी, लोग क्या सोच रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी. तो फ्यूडल सोसाइटी थी. अंग्रेज जब यहाँ पे आए, वो किस लिए आए? क्योंकि उनको तो धंधा करना था, बिजनेस करना था. इट वाज कैपिटलिज्म को, अपने कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाना था, इसलिए वो यहाँ पे आए. कैपिटलिज्म में बहुत सारी गलत चीजें हैं, लेकिन अच्छी चीजें क्या है? कैपिटलिज्म में मशीन तैयार होती हैं, प्रिंटिंग मशीन, पब्लिशिंग होता है, किताबें छपती हैं, यूनिवर्सिटीज बनते हैं, मॉडर्न एजुकेशन लोगों तक पहुंचता है. इंफ्रास्ट्रक्चरली आप कह रहे हो? नहीं, नॉलेज वाइज ऑल्सो. अच्छा. इस तरह से शिक्षा का भी आदान प्रदान होने लगा, और लोगों के अंदर ज्ञान जब बढ़ता है तो लोग सवाल पूछते हैं. एंड व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, यू इनएविटेबली विल अराइव at these kind of questions, that what is the difference between Deepak and Joy? Sociologically, no difference. We are both human beings. सही बात है. Yeah. Culturally, not much difference. We are both from India. We are both from the same society. Correct. है ना? Interest-wise also, not maybe so much difference. The only difference could be Deepak is rich, I am poor. So there's a class difference. That Deepak is higher caste, I am lower caste. So there is a caste difference, right? समझ गया. So class और caste तो इंसान का बनाया हुआ है. So these kind of questions started coming in 18th, 19th century, and 20th century it just exploded. That man, who is a man and what is a man in society? Man equals man का concept आया. उस education, उस development of history, science. जैसे मैंने कहा इससे पहले, history was always the history of rulers. History of ruled जो है, आम आदमी की इतिहास जो है, वो बाद में बना, 19th century के बाद शुरू हुआ, जिसको हम सबल्टर्न हिस्ट्री बोलते हैं. अब नीचे से देखते हैं, अब ऊपर से नहीं देखते हर चीज को, है ना. तो मकबरे से आप, हाँ, बॉटम अप देखते हैं. बॉटम अप देखते हैं, क्योंकि वही तो समाज है ना. समाज तो लोगों से बनती है, सिर्फ रूलर से समाज बनती नहीं है. तो ये सब जो नॉलेज है, यहीं से डेमोक्रेसी पनपा, यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि कोई राजा क्यों हमको वो करेगा. एक आदमी पैदा होता है, वो राजा बन जाता है, उसका बेटा भी राजा बन जाता है. क्यों भाई? मैं उससे ज्यादा काबिलियत रखता हूँ जनता के बारे में सोचने में. तो यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, है ना, राजा को निकाला गया. यहीं से इटालियन रेवोल्यूशन हुई, यहीं से ब्रिटिश रेवोल्यूशन हुई, यहीं से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई. सेनेट बने, पार्लियामेंट बने, लोग आए जिनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. करेक्ट. कि मैंने कहा भाई दीपक सुनो ना यार, तुम मेरे तरफ से पार्लियामेंट में बैठो, और हमारे एरिया में जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, वो तुम पार्लियामेंट में जरा उछालो और सोल्यूशन लेके आओ. पहले क्या था? राजा था, राजा जी हमारे दिन में बड़ा प्रॉब्लम है, चल भाग, आप कुछ नहीं कर सकते. या राजा जी खुश हुए, अच्छा प्रॉब्लम है, ये ले 2 मोहर, और मैं, और बहुत शुक्रिया राजा जी. वहां से समाज जो डेमोक्रेसी की तरफ है. हाँ. तो ये सारा नॉलेज अंग्रेज ने तो ये नॉलेज दिया अपने फायदे के लिए, क्योंकि अगर आपको एक जगह रूल करनी है तो आप अपने देश से सबको लेके तो नहीं आ सकते. आपको वहीं के लोगों का फायदा को इस्तेमाल करना होगा. तो आपको ऑफिसर्स चाहिए जो इंडियन ऑफिसर्स होंगे, आपको पुलिस चाहिए जो इंडियन पुलिस होगी, आपको आर्मी चाहिए जो इंडियन आर्मी, इंडियन लोग से आर्मी बनेगी, पॉलिसी मेकर्स चाहिए लोकल लोगों को समझने वाले, वहीं से चाहिए. तो उनके लिए शिक्षा चाहिए. तो उन्होंने कहा भारतवर्ष में जो शिक्षा प्रणाली था वो कास्ट बेस्ड था. उसमें सवर्ण जो थे ऊपर वाले, वो एक दूसरे को शिक्षा देते थे. ज्यादातर बाकी लोग जो है शिक्षा नहीं मिलती थी. संस्कृत में पहले एंशिएंट इंडिया में होता था, वो 10-12% लोगों तक पहुंचता था. मैक्सिमम पीपल हु स्पोक लोकल लैंग्वेजेस. नॉर्थ में ही समझ लो प्राकृत बोलते थे, बुद्धिस्ट पीरियड में पाली बोलते थे, और ये आम आदमी की भाषा थी, संस्कृत नहीं थी. तो लोगों तक पहुंची नहीं. बिफोर रामायण और महाभारत गॉट पब्लिश्ड, सबने रामायण महाभारत पढ़ा भी नहीं. यू नो व्हाट आई मीन. सो व्हेन द इंग्लिश केम,
They said, okay, to rule India, we need Indian people to be, section of people to be educated. So they opened universities, schools, and started teaching history, geography, English, sociology, and whatever, for their own benefit. But when you are educating them, you're getting teachers and professors. These teachers or professors opening minds of a certain generation of Indians. Of course. And this generation of Indians is now going to come back to society, ask questions, and see, अरे ये गलत है, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. So what happens? You have a Jyotiba Phule who comes up, who says, okay, women's education is important. Why are women deprived of education? Vidyasagar will come in Bengal, who will say, हाँ, औरतों को पढ़ना चाहिए. Ram Mohan Rai will say, widow remarriage होना चाहिए. Widows को हम क्यों तड़पाते हैं? सती प्रथा is bad. किसी के पति मर जाने से उसको क्यों जला देंगे? Etc. etc. So reformation happens. You know. Then spiritual reformation happens. Vivekananda comes, very educated, who says service is God. God is service. If you're not serving the poor, you're not serving God. So this is what? This is spiritual reformation. Correct. Then political ideas come. Ideas about French Revolution, this revolution, man equals man concept comes. From this background comes Subhash Chandra Bose. Because he studied in Presidency College over there in Bengal. He came out of those batches of students who first came to know about the global history, global philosophy, science, rationalism, you know, logic, all these things. And then with those he will apply it to India. He will come and say, okay, then why are my people like this? Why are you controlling my people's destiny? Why are you robbing my people? Why are you entering our villages and making the farmers work on your crops? Why are you turning food crop into cash crop? Why are you destroying our handicrafts and our age-old traditions of artisans and this thing? Why are you taking all our money or wealth and taking it over there? Why are you selling your goods to us and making us pay for that, which we are creating? All these questions will come up. Also questions about your own society, the old problems that you have. You know, you'll ask questions from your rulers or your own rulers that, you know, who gave you the right to exploit your own subjects and all. So all these things built Bose and Bose's mind, and he became a socialist-minded person who wanted equality in society. But to get that, first he needed their political masters to be thrown out of India, which was England. So the concept of nation was what? England, in order to define their own market, they would make lines, right? This is Indochina. This is Malaysia, Indonesia, which is a market, a Dutch market, a French market. They make a border to define the market. This is our market. We control this. That became our border. Those became our national borders, which became modern state. Before that, borders were fluid. You could cross from Punjab into Afghanistan. There are no borders. There are no visas. Where is the border? There is no visa. There is nothing. You have certain races. Mongol is a race. Uzbek is a race. South Asian is a race. So races will keep coming here and there, and you will say, oh, this person from China came, traveled in India and went back. Right? But those are races. There were no definite borders. You could cross to Tibet and cross to China. Borders became defined when you defined market. And this market became our national borders. And that became power. That became higher. So concept of India, idea of India was enshrined in the constitution, because all the constitution assembly, they met for months and months, for 2 years, they discussed and debated as to what is India. And then they came out with this idea that India is this loose concept where people, diverse people, right from the northwest to absolute south. Otherwise, what is common between Srinagar and Pondicherry? Nothing, right? But we are bound by common history. There is a certain culture which flows within us. We are a country of contradictions. We have many religions, many many languages, many beliefs and faith, many ways of looking at things, and all this is India. We cannot exclude one for the other. हम ये नहीं कह सकते कि बंगाली जैसा सोचता है, पंजाबी को वैसे ही सोचना चाहिए, या पंजाबी जैसा सोचता है, महाराष्ट्रियन को वैसे ही सोचना चाहिए. नहीं, ये अलग अलग सोच हो सकते हैं, और ये सब मिलके इंडिया है. तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अनेकता में एकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया. इंडियन कौन है? इंडिया क्या है? वी द पीपल है. और वी द पीपल में कोई फर्क नहीं है. आप
मछुआरे हो, आप जुलाहा हो, या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई फर्क नहीं है. वर्कर एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट इज द सेम. द फार्मर एंड द लैंडलॉर्ड इज द सेम इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. Of the people, for the people, by the people. सो ये सारी चीजें जो है ना, कहाँ से आई? ये आई इस एजुकेशन से. तो बोस was a product of this. And if Bose was alive, whatever conspiracy theory may be, he would have been part of this Constituent Assembly. He would have been very happy with the Constitution because this Constitution actually reflected his ideas. He wanted equality. What we always saw, what we've always seen in terms of the freedom fighters that we've seen, Yeah. whether it's a Gandhi or a Sardar Patel, or you mentioned about Swami Vivekananda having a very different ideology in terms of the India's freedom struggle. Yeah. He was always focused on education. Yeah. Vivekananda, you mentioned rightly so, you mentioned Jyotibai Phule. Yeah. He was very focused on women in education. Yeah. Everybody had their own philosophies, had their own models, had their own thoughts कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. Correct. The ideas were different, the thoughts were different, Yeah. but probably the motto was one, which was India's independence. Political independence. Political independence. Thank you for the correction. Yeah. Now, when it comes to Bose, Yeah. what we've seen and what we've read, again, to date back to a correct source or a correct movie or a correct history book is very difficult for us to date back to that. But what we've known is his ideology was completely different from a Gandhi or a Nehru or a Patel or a Swami Vivekananda in terms of him being... Method. It's a method. Him being a little aggressive than the other No, others I in don't call question. that aggression. Do you think so? Firstly, do you think so? No, I don't think so at all. Okay. Bose was a gentleman. Bose was an educated gentleman. His whole idea was based on education. It was not based on militarism. हम बोस को देखते हैं तो उसका इमेज सिर्फ एक मिलिट्री वाला इमेज करेक्ट, आईने पे जाता है और आर्मी पे जाता है. वो तो एक मेथड है. आप डांडी मार्च करते हो या आप आईने के साथ मार्च करते हो, आप भूख हड़ताल करते हो या आप किसी पे हमला बोलते हो, तो मेथड है वो. निष्कर्ष तो एक ही है. मेथड कैसे आप डिफाइन करेंगे कि हम, तो आप भी एक्टर हो, समझ लो मैं भी एक्टर हूँ. चलो समझ लेते हैं. हाँ. आप थिएटर के जरिए अपनी बात को कहते हो, मैं सिनेमा के जरिए अपनी बात को कहता हूँ, तीसरा जना माइक्रो ड्रामा के जरिए अपनी बात को कह रहा है. मीडियम्स अलग हो गए. हाँ, हो सकता है कि टारगेट ऑडियंस अलग हो, लेकिन बात आप भी बोस की कर रहे हो, मैं भी बोस की कर रहा हूँ, वो भी बोस की कर रहा है. समझ लो, मतलब कहने का मतलब है फाउंडेशन जो है वो कहानी है. तो मीडियम अलग है. हाँ. बोस ने ये मीडियम क्यों चुना, वो भी सोचने वाली है ना. बोस कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 2 बार, एक बार नहीं 2 बार. बहुत पॉपुलर था वो. लेकिन 1930s तक आते आते बोस को लगा कि ये बहुत देर हो गई है, बहुत वक्त आ गया है. उसने ये भी भापा कि दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर थोड़ा कमजोर हो रहा है. ये कब की बात कह रहे हो? ये 1937 से शुरू हुआ वो सोच, जब यूरोप में हलचल शुरू हुई. एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया आपका, है ना, 14 से हो गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज काफी स्ट्रेच्ड हो गए थे, है ना, उन्होंने देख लिया था बोस ने ये. उसके बाद भी असहयोग आंदोलन चला, बहुत सारे आंदोलन इंडिया में, आपके बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे. बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, गरम दल थे, पंजाब में आपका भगत सिंह पंथी था, सब कुछ था. तो तरह तरह की चीजें चल रही थी. कुछ लोगों ने बंदूक को चुना था, है ना, स्वदेशी जो थे वो क्या करते थे कि किसी एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी, कहीं एक बम गिरा दिया, कहीं पे आपने ट्रेन लूट लिया, बैंक लूट ली, ये सोचकर कि इससे अंग्रेजों को धक्का पहुंचेगा. धक्का पहुंचता था, उनको चोट लगती थी, लेकिन अंग्रेज इसे समझ जाते थे कि उनका एम्पायर बहुत बड़ा था. उनका सामर्थ्य बहुत बड़ा था. Their resources were huge. One bomb or one gunshot is not going to be enough to dislodge them. Of course, of course. बोस ये जानता था कि ये छुटपुट बंदूकबाजी से कुछ नहीं होने वाला. हाँ, बोस ये मानने लगा था कि गांधीयन ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, गांधी का जो रेजिस्टेंस था, और फाइनली वो काम आया कि असहयोग जो है, कि पूरे देश के लोग अगर कहेंगे कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ना आपका कपड़ा खरीदेंगे, ना आपकी शिक्षा लेंगे, ना आपके ऑफिस में काम करेंगे, ना आपकी सेना में काम करेंगे, ना आपकी पुलिस में काम करेंगे, तो अंग्रेज देश चलाएंगे कैसे, किसके जरिए? कि इंग्लैंड से तो सबको लेके नहीं आ सकते ना, वो तो इंग्लैंड फिर कैसे चलेगा, है ना. सही बात है. तो फाइनली वही हुआ. लेकिन पोस्ट 1937 तक आते आते थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया था. उसे लगा कि
जो यूरोप में माहौल बदल रहा है, जो एनिमिटीज तैयार हो रही हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक दूसरे के साथ एनिमीज हो रहे हैं, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ये अंग्रेज जो हैं अभी व्यस्त हो जाएंगे अपने यूरोपियन कॉन्ट्रडिक्शंस में, दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट एंड विद इन ईच अदर, एंड दैट विल अगेन स्ट्रेच देम, they will focus their army, their resources there. This is the time when they will take their eyes off the Indian peninsula. So there will be an opportunity for us to strike here. And then with all the other movements going on in India, the pressure will be so much that they will probably say, यार हमसे नहीं हो रहा है, संभल नहीं पा रहे हैं देश, and they will go. And this was not a wrong idea, this was a correct idea. You know, finally that is what happened. In 1946, a naval mutiny happened right here in Mumbai. When the Indian Navy, which was English Navy of course, made of Indians, they refused to take orders and they revolted. That was a shock. That is when the British realized that, okay, our army and navy, if defense revolts, and it's falling apart. yes, if the bureaucrats refuse to work, and quit India already हो गया था 42 में, Correct, 42 में. नॉन कोऑपरेशन चल ही रहा था, तो एक अजीब सा प्रेशर आ ही गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते ब्रिटिश हैड लॉस्ट देयर ग्रिप, देयर वेल्थ हैड रिड्यूस्ड, सो दे डिडंट हैव एनफ मनी टू कंट्रोल दोस मार्केट्स। तो उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हो गया था। बोस ने ये 37 में सोच लिया था, एंड देन ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट। ही सेड ओके, टू बिल्ड, ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड एन आर्मी विद इन इंडिया उस समय, लेकिन उसको ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे थे इंडिया में। सो when the World War II opened up and British Army जो थी वो ब्रिटिश लोगों से कम बनी थी, उसके कॉलोनीज के लोगों से ज्यादा बनी। करेक्ट। तो सिख रेजिमेंट था, डोगरा रेजिमेंट था, आपका बहुत बड़ा गढ़वाली रेजिमेंट था, है ना, गोरखा रेजिमेंट था, ये सब इंडियंस तो थे। तो बोस ने देखा कि ये जो है, अगर मैं इनका फायदा उठा सकूं, तो जब वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए वॉर में, जर्मनी में, जापान में, सिंगापुर, यहाँ वहाँ, तो उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वो रिक्रूट करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी। इसके लिए वो हिटलर के पास गए, इसलिए वो जापान के चांसलर के पास। बट ये हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं। बिल्कुल। आई वुड लाइक टू बैक ट्रैक यू अ लिटिल एंड कम बैक टू द बिगिनिंग ऑफ हाउ एसेंशियली the whole Netaji Subhash Chandra Bose journey and the whole conquest, like I mentioned, quest to conquest. We'll maintain this ideology throughout the episode. You were mentioning about कि उन्होंने आर्मी फॉर्मेशन करना चाह रहे थे। उसके बाद the English regiment, they were basically trying to get hold of the Indian regiments only, चाहे वो गोरखा की बात करो, चाहे वो गढ़वाल की बात कर लो, चाहे वो पंजाब की बात कर लो। But it all dates back when the then Calcutta under Britain rule, he was under the British rule, and he was trying to escape. My whole understanding of that was, he wanted political independence from the British rule, of course, but escape karna under British rule, did he not compound for all sorts of risks, all sorts of surveillances in terms of, because we were under British rule, and there was a lot of like you mentioned, British एक गन पॉइंट और एक गोली या एक बॉम्ब से मारने वाली आर्मी नहीं है। हम उनके अंडर थे बहुत साल तक, उन्होंने हमारे पर रूल किया है बहुत साल। तो उसके बाद वो एस्केप करना, थिंकिंग कि यार एक प्लान बनाते हैं जी और यहाँ से निकलते हैं जी, एंड देन आई विल फिगर आउट। और वाज इट ऑलरेडी प्लान्ड कि यहाँ से मैं निकलूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से शायद जापान जाऊंगा, वहाँ पे अलायंस फॉर्म करूंगा, वहाँ पे मान लो अगर फॉर्मेशन हो जाती है तो ठीक है, अगर वहाँ पे ऑब्वियसली डिड नॉट अकाउंट फॉर द हिरोशिमा नागासाकी दैट हैपेंड, बट अगर कुछ नहीं वर्कआउट करता है, ही विल देन गो टू सिंगापुर, देन फिगर आउट हिज अलायंसेस देयर। सो हाउ वाज, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड Bose's strategy of actually like just leaving the Calcutta city and actually thinking about it in that particular process? So, Bose, as I said, was a combination of idealism and pragmatism. Idealism जब था तो वो कांग्रेस में थे उस समय, और वो फ्रीडम मूवमेंट का सिर्फ हिस्सा नहीं थे, बहुत बड़े लीडर थे। नेहरू एंड बोस वेर द सेम लेवल। Gandhi never took leadership role. Gandhi was always the guide. तो वो पीछे रहते थे। और
लीडर्स को आगे करते. तो Nehru and Bose were right there. Jinnah and Patel were right in front. Jinnah was a constitutionalist and a lawyer. Patel was a very practical man, you know, who could handle things on the ground. Nehru was an intellectual and a rationalist who could visualize, vision था उसका. And Bose was a dynamic leader, एक passionate dynamic leader था, जो वो ऊर्जा भरना चाहता था लोगों में कि वो एक साथ उठ जाए. तो जैसे मैंने कहा कि 37-38 तक आते आते बोस को लगा कि नहीं, ये रास्ता बहुत लंबा है, ऐसे में तो हम मौका जो है गंवा देंगे. अभी टाइम है, अभी इस वक्त अभी एक्शन लेना पड़ेगा. तो ये तो उसको उस समय उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया, है ना. अब बोस की स्मार्टनेस क्या है, गांधी जो थे बड़े ट्रांसपेरेंट आदमी थे. वो जब कुछ करते भी थे तो पहले अंग्रेज को लिख के बोलते थे, भाई मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, मैं अपने दुश्मन को भी अनजान नहीं रखूंगा, सत्यवादी, दुश्मन को भी बता दूंगा कि मैं आपके नमक को बॉयकॉट करने वाला हूँ. आपको जो करना करो, मैं आपके नमक को बॉयकॉट करने वाला हूँ. हाँ, वो लिख के देते थे. वो अपने यंग इंडिया करके उनका एक न्यूज़पेपर था, वो लिख देते थे कि आपको जो करना, आपको जेल में डालना डालो मुझे जेल में, लेकिन मैं ये करने वाला हूँ. और बोस वांटेड टू प्ले व्हाट यू कॉल द चाणक्य नीति, यू नो, कनिंगनेस, क्लेवरनेस. दुश्मन को पता ना चले कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दाएं हाथ को पता ना चले मेरे बाएं हाथ में क्या चल रहा है. और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, क्योंकि वो मौका परस्त थे उस वक्त, वो मौके का फायदा उठाना चाहते थे. वो उन्होंने देखा कि अभी जो चल रहा है माहौल, उसमें अंग्रेज जर्मनी के बिल्कुल दबाव में आ चुके हैं. हिटलर वाज विनिंग एट दैट टाइम, यू नो, लेट 30s अर्ली 40s व्हेन हिटलर टुक ओवर हाफ ऑफ यूरोप. हिटलर वाज राइट अप देयर. रशिया भी खत्म हो रही थी उस समय. अंग्रेज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. दे वर इन ए वेरी बैड शेप. अमेरिका के वॉर में एंटर करने से पहले काफी डामाडोल माहौल था उस समय. तो बोस ने कहा कि भैया देखो, हिटलर जैसा भी आदमी है, जैसे भी उसकी विचारधारा है, फिलहाल तो मुझे सिर्फ ये फायदा उसे उठाना है कि भाई हमें अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, एंड आई नीड दिस प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इंडियंस हैं, और मुझे ये करना है. आप बस हमको इतना सपोर्ट दो कि हम यहाँ अंग्रेजों को अटैक कर रहे हैं, आप वहां अंग्रेजों को अटैक कर रहे हो, वो आपका काम है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. यहाँ कर रहा हूं तो इसको आप सपोर्ट करो, बस, दैट्स इट, लेट अस. So that is why he wanted to get to Germany. But getting to Germany is not easy when you are under house arrest. Correct. When you are not under house arrest, you will take the ship, you'll go here. But when you are under house, how do you go? So imagine the man sitting there in that room for days. He's planning his whole journey. He's drawing his own map. He's thinking of the point through which he will go and what all changes will happen. He's also passing his message to his brother and everyone, to his other comrades, who will inform other people, who will inform more people in Afghanistan, in Europe, that Bose is coming. Because Bose had already earlier spent a lot of time in Germany. You know, Bose had a very long period in Germany. There was a period when in Germany, this is before Hitler kind of took over fully. Correct. A lot of Indians were in Germany, students. These students were there in Germany and they were discussing freedom. They were thinking about freedom. They were actually spreading the information about Indian independence to other European countries and European people, trying to get support from there, from other governments. Correct. That, you know, please, we need, Indian people need independence. So Bose was part of that in Germany. That is where he fell in love with Emily. And that is where, you know, they were together. This was Bose had a German life. But this is not much talked about. No, his personal life obviously is not much talked about. We are a country which is always trying to mythologize our leaders. हम अपने leaders को, चाहे वो पौराणिक गाथा में हो, चाहे मॉडर्न गाथा में हो, उनको हम एक माइथोलॉजी का रूप दे देते हैं, अवतार बना देते हैं, फिर हम उनमें आंच नहीं आने देते. अब आपके अंदर दीपक भाई गुस्सा भी होगा और खुशी भी होगी, जोश भी होगा, रोष भी होगा, हाँ, कमजोरी भी होगी और स्ट्रेंथ भी होगा. कभी आप फिसलेंगे, कभी आप खड़े हो जाएंगे, कभी आपकी आंख मचलेगी, कभी आप आंख बंद कर लेंगे. ये सारी चीजें आपके अंदर, क्या आप इंसान है भाई. अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं, आज से आप अवतार हैं, आप में मुझे कुछ वो नहीं देखना चाहिए जो मैं नहीं चाहता देखना, तो आप पे तो प्रेशर आ गया.
तो फिर मैं तो फसाद में क्रिएट आप तो फिर मेरे को उसी इमेज को बिहोल्ड करने के लिए मेरे को फिर बिहेव तुम करना अमर पड़ेगा। चित्रा कथा के आपका हाँ, नायक हो जाएंगे सही ना। बात है। मैं वैसी चीजें लिखूंगा आपके लिए हाँ। और लोगों को वही बताऊंगा पढ़ाऊंगा और लोग समझेंगे कि दीपक भाई तो ऐसे हैं। हम्म। अरे दीपक भाई की निजी जिंदगी है, हम्म। दीपक भाई कभी कभी झूठ बोलते हैं, हाँ, सही दीपक बात है। भाई कभी कभी अपना डाइट चीट करते हैं। हाँ हाँ हैं हाँ। ये सारी चीजें हैं। मेरे को लग रहा है मेरा जिम ट्रेनर मेरे से बात कर रहा है। नहीं, क्योंकि दीपक भाई के बारे में हमने बता लिया है कि हाँ। भैया ये कभी गलत नहीं करते हैं, नहीं कुछ नहीं, ये सही नहीं बात है, सही बात है। दिस इज द वे we have always tried to do it in our country. We are an emotional nation, sentimental nation. Emotions पे ज्यादा लॉजिक या रीजंस पे कम जाते हैं, जबकि हमारे बैकग्राउंड में रीजन है। हम लोग एक ऐसे समाज थे जो तर्क में विश्वास रखते थे, आर्गुमेंट में। दैट वाज आवर बेसिक दिस या बट somehow we transformed into an emotive. हर बात में हमको हमें लग जाता कैसे तूने कैसे कह दिया है हमारे बारे में बात। You know, so we have a Karni Sena here, we have this Sena here, we have that Sena. Everybody is rising up and becoming raging about something. अरे भाई सुन तो लो, समझ तो लो, बातचीत तो करो, असल क्या है, नकल क्या है, ऐसे क्या कि आपने कैसे कह दिया। अरे भाई मैंने क्या कहा है और क्यों कहा है उसको तो समझो। उत्तेजित हो जा रहे हैं लोग, उत्तेजित हो जा रहे हैं। उत्तेजित सिर्फ अटैक करने लगते हैं। अरे अटैक क्यों करना है? आप भी इंसान, मैं भी इंसान, आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय। अगर मैं कुछ कह रहा हूं उसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, मेरे पास क्या तथ्य है और आपके पास क्या तथ्य है, आप दो। मैं आपको अटैक करने और दीपक गाली देने लगूंगा आपको, वो करना। तो लीडर्स को लेके भी हमारे देश में हमेशा यही होता रहा है। मेरा नेताजी और तुम्हारा तिलक नहीं है, ये सबके नेताजी और सबके तिलक है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि नेताजी सिर्फ बंगाल के हैं, बंगाली हैं, लेकिन हमारा नेताजी ऐसे पकड़ के रखूंगा और उसको ढील नहीं दूंगा, ये तो कोई बात नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ, हाँ, तो ये जो चीज है ना, आपको हर चीज को ऐतिहासिक तरीके से देखना पड़ता है। यू हैव टू टेक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स। आप उनको सिर्फ इमोशन से नहीं देख सकते। मैं मानता हूं कि कोई अपने माँ या बाप को बुरा नहीं सुनना चाहता, देखना चाहता, पर घर पे तो आप जानते हो कि आपके बाप ने भी झूठ बोला है, आपकी माँ ने आपके लिए झूठ बोला है, तो है ना सब। मतलब अगेन डेट्स बैक टू some time back when we were talking about contradictions, right? और है ही, there is obviously contradiction. कल को आप मतलब ये मेरे को I think किसी ने थोड़ा सा डिटूर ले रहे हैं, but we obviously come back to again Hitler and नेताजी. But ये मेरे को I think कैलाश खेर सर ने बोला था एक बार कि जब उनसे बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने बोला था कि हमें सिखाया जाता है सच बोलना, हमें बोला जाता है कि झूठ बोलना गलत है और सच बोलना सही है। लेकिन मान लो आप घर पे हो, आप 10 साल के हो और आपके पापा मंदिर के सामने बैठ के पूजा कर रहे हैं और मंदिर से थोड़े दूर लिविंग रूम में पापा का फ़ोन पड़ा है और पापा का फ़ोन बजता है। तो पापा का फ़ोन, तो पापा पूजा में बैठे हैं, पापा का फ़ोन उठा नहीं सकते, तो पापा तो फ़ोन कोई भी उनके पास लेके जाता है तो बोलेंगे बात करना है, बोल दो, नहीं बोल दो मीटिंग में है। आप समझ रहे हो? तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि एक 5 साल के बच्चे को या 8 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे में जो कॉन्ट्रडिक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्कूल में वही सिखा रहा है कि ट्रूथ इज द एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ लाइफ, कि नहीं यार यही सच है, यही सत्य है। और जब आप घर पे सारी चीज़ें देखते हो और जब आप और बड़े होते हो तब आपको लगता है कि क्या सच और क्या झूठ। करेक्ट। तो इसमें भी एक अजीब सा फाइन लाइन है, फैक्ट्स और ट्रूथ में एक फर्क है। फैक्ट्स है कि आप काले कपड़े में बैठे हैं अभी और काले मग से कॉफी पी रहे हैं, काली कॉफी, ये फैक्ट है। ठीक बात है, ठीक है, ठीक बात है। अब इसमें से मुझे सच्चाई निकालनी है कि आपको काला पसंद है या नहीं है, वाला उसमें से मैं सच्चाई निकालता हूं कि भाई दीपक भाई को काले रंग से बहुत प्यार है। ये एक सच्चाई मैंने निकाला, ये मेरी अपनी सोच से मैंने सच्चाई निकाला। फैक्ट है आप काले में है, उसको अगर मैं कहूं कि नहीं दीपक भाई तो पूरे व्हाइट में थे, तो झूठ है, वो बहुत बड़ा झूठ है ना। उस झूठ के एरिया में हम नहीं जा सकते। फैक्ट तो फैक्ट है, लेकिन उसमें से सच्चाई हम अपना निष्कर्ष जो है सच्चाई कभी निकाल लेते हैं, अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। तो फैक्ट एंड ट्रूथ में जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। Let's come back to which is fact. हाँ, तो let's come back to some facts, which is Netaji and his alliance, or rather his support-seeking strategy, opportunism with Hitler. So he was then planning कि नहीं अभी मैं हाउस अरेस्ट में हूँ कैलकाटा में, अब मेरे को प्लान करना है निकलना।
how important was his understanding of geopolitics then? Huge. And what did he plan then, and how did he plan his escape? Huge. He was in a way an extremely talented person. Uh-huh. You know, he was a Bengali, of course, very creative, and he knew that the English were stretched thin. They could not be looking into every little detail around them. Lots of things were happening at that time. Lots of things. As I told you, World War II was almost on. It was on. They could not put spies everywhere. They could not put look out for everything. And in India, there were 4 or 5 movements going on at that time. The Swadeshi was going on in Bengal. The Gadar was going on in Punjab. Yeah, Correct. Gandhi's movement was going on over here. Muslim League was emerging at that time, post 35, 36. It was emerging over there. In the south, there was a different kind of rebellion going on. They were kings and maharajas. Some of them, they were murmuring around them. So there's a whole lot of things were happening over there. So Bose knew that they won't be able to focus completely. ठीक है? Yeah, ठीक है. there will be certain amount of scrutiny, but not fully. So you have to take advantage of that. And also that the people who will be keeping a lookout for him will be Indian. It won't be British. It will be Indians employed by the British. Yeah. And Bose, because he was part of Congress earlier, his brother Sharad Bose was still part of Congress. He was part of a huge network in the country. And Bose had built a network in the country of information, of exchange of information, of finding of routes and stuff like that. वो सब उसने build किया है, support system. And this came into use when he was trying to escape. Yeah. He had built a support system, and these were underground support system. You would not realize कि ये बंदा जो है वो किसके साथ है? हाँ, आपका जो गाड़ी का जो टैक्सी का जो या गाड़ी का जो ड्राइवर है वो एक्चुअली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा. वो जो उसको रिसीव करने के लिए आया है वो एक्चुअली इन्वेस्टर है इन द मूवमेंट, वो आपको समझ में नहीं आएगा. तो इस तरह के उसने बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया था. तो उसने इसको प्लान किया. ऑब्वियसली देयर आर चांसेस यू टेक. द प्लान वाज दैट in this particular I will remain a house arrested, so I'll stay within the room. Give the impression outside to the police that he's not coming out of the room, that he's ill, he's very ill, he's not coming out of the room, he's locked himself in. So they will be saying, अच्छा कमरे से नहीं निकल रहा है, घर से तो निकलने की बात ही नहीं है. That period I will change into a particular disguise which they can't even anticipate. I'll become a Maulana. So Maulana में क्या होता है, आपका पूरा फेस दाढ़ी से कवर है, सब कुछ कवर्ड है ना. आपको कोई अगर आप उसके अंदर हल्की मूंछ हल्का ये लगाएंगे तो शायद फेस का डील पता चल जाए. मौलाना मेरे को पता नहीं चलेगा. और मैं ऐसे में आप उन लोगों को खाना खिलाओ उस समय, समझ लो वो खाना में व्यस्त है या दोपहर को रात को जो खाना खा के सुस्ता रहे हैं. ऑब्वियसली खाना खाने के बाद तो सुस्ताएंगे कि यार सारा दिन मैंने पहरेदारी की घर के बाहर, अब रात हो गई है, इतने दिन से तो बोस कमरे से निकला नहीं है, कभी सो ही रहा होगा, हम थोड़े सुस्ता लेते हैं. जब वो सुस्ता रहे होंगे तब हम पीछे से निकल जाएंगे और वहाँ पे गाड़ी रेडी करेंगे बाहर कहीं पे. जो ड्राइव करने वाला मुझको एक पर्टिकुलर साइड में लेके जाएगा, है ना. उसके भी पेपर्स तैयार होंगे उस गाड़ी के, उसके अपने आइडेंटिटी पेपर्स तैयार रखेंगे. उन दिनों की आइडेंटिटी पेपर्स थोड़े अलग होते थे, तो वो आज की तरह आपका जो क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट्स और रेटिना वाले तो आइडेंटिटी नहीं होती थी. देयर वर पेपर्स, यू कुड राइट दोस थिंग्स एंड ऑल. उसके साथ हमको फला स्टेशन से ट्रेन पकड़ के फला जगह उतरना है, यहाँ से हमको कोई और इस रूट से वहां लेके जाएगा, यहाँ से हम पैदल इतने वहां चले जाएंगे. And how did he estimate the repercussions of all of his action? No, he knew that he cannot stick to one mode of travel, one direction. He will keep changing. But did he have a backup plan as per your understanding? Backup plan तो यही है ना कि अगर मान लीजिए because क्योंकि under British arrest हम थे उस टाइम, तो I'm sure there will be a high level of vigilance, high level of surveillance कि यार बोस तो हाउस अरेस्ट में था, बोस के ऊपर तो निकला ही हुआ था फरमान. तो इसीलिए तो उसने अपना ये जो जर्नी है वो ऐसे प्लान किया कि वो कोई एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा. तो आप किसी को फॉलो करते हो, समझ लो आपको पता चल गया कि मौलाना के डिस्गाइज में गया है, तो आप मौलाना को फॉलो कर रहे हो फला एरिया में कि ट्रेन यहाँ से वहां जा रही है, तो वो जरूर वहां उतरेगा. आप पहले ही किसी स्टेशन में उतर जाओ, आप वहां से उस तरह जाने के बदले उल्टे डायरेक्शन में चले जाओ, वहां से आप चेंज कर लो अपने आप को करके
आपने ट्रांसपोर्ट भी चेंज कर लिया करके किसी और तरफ चले गए, फिर वो ट्रांसपोर्ट को ढूंढ रहे हैं, जब उनको पता चला तो आप पैदल चले गए, पैदल से आप इस डायरेक्शन में बॉर्डर है जहां से लोग ज्यादातर लोग वहां से क्रॉस करते हैं, आपने वहां से क्रॉस नहीं किया, आपने कहीं और से क्रॉस किया। ऐसे ऐसे करके छोटी 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 चीजें वो गढ़ते बढ़ते, इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, और उतना ज्यादा आपका क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए जो बोस का था। अफगानिस्तान का जो जर्नी है वो बड़ा मुश्किल जर्नी है, क्योंकि आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जाते हो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऐसी जगह है, बड़े उसमें अंग्रेज भी कंट्रोल नहीं कर पाते। दिस इज काबुल you're talking about. काबुल से पहले आपका जो अभी का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो बॉर्डर है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो सिंध बालोचिस्तान वाला जो एरिया है ना, हाँ, सिंधु घाटी कह लो या, तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो पूरा गिलगिट बालोचिस्तान वाला जो एरिया है, वो अंग्रेज पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वहां पे देवर अफगान बैंडिट्स, अफगान ट्राइबल्स होते थे जो अंग्रेजों को खदेड़ देते थे, तो अंग्रेज वहां जाने से डरते थे, अंग्रेज वहां पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अंग्रेज अफगानिस्तान को कंट्रोल कर ही नहीं पाए कभी, दे वर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, दिस ट्राइबल। सो Bose knew this area as an independent area. In this area, if I can get through to some tribals who are opposed to the British, which they were opposed to the British, then I'll be able to take advantage. वहां मैं अफगान बन जाऊंगा और मैं वहां से निकल जाऊंगा। थोड़ी बहुत पश्तून मैंने सीख रखी है। दिस वाज बोसेस क्रिएटिविटी इन एजुकेशन, कि लैंग्वेज में उनकी जो है वो काफ़ी लैंग्वेज में फ्लेक्सिबल थे। वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को सीखने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, फुल ऑन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। और जो लैंग्वेज नहीं आती उन्होंने बहरे बनने की भी कोशिश की। मौलाना के रूप में वो बहरे बन गए अचानक, ट्रेन में वो बहरे बन गए कि जब उनसे कोई पूछ रहे, पैसेंजर भी कुछ पूछ रहा है, तो जब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब उस तरह का वो उन्होंने रूप धारण कर लिया, तो लोगों को लगा गूंगा बह रहा है, ना कुछ बताने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। तो ऐसे अफगानिस्तान में गए, वहाँ लोकल ट्राइबल उनका हेल्प लिया जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो ऑब्वियसली वो उनको लेके गए। उन लोगों ने सेफ हाउस क्रिएट करके रखा था वहाँ पे, वो सेफ हाउस में रहे, वो सेफ हाउस में किसी को पता ही नहीं था। फिर उनको पता चला कि नहीं, अफगानिस्तान में भी लुकआउट हो गया है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ गया, कुछ फोटोग्राफ्स आ गए। बट दिस वाज नेवर दिस, ये कभी भी उन्होंने, जैसे हम गांधी की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि गांधी जी सत्यवाद थे और वो बता देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि मैं ये करने वाला हूँ। ही वाज मोर ऑफ अ चाणक्य नीति, लाइक यू मेंशन्ड, कि वो प्लान कर लेते थे, चालू थे, उन्हें पता था उन्हें क्या करना है और अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से कर लेते। जब वो फरार हुए, जब वो निकले और जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ रूट बना के निकलते रहे, वाज देयर नेवर a point in time where he actually, there was news that he's actually left, or was there no repercussion? नहीं, वो तो हो गया था, है ना, वो तो पता चल ही गया होगा। जब वो अफगानिस्तान पहुंचे तो ये खबर, पहले इनको शक हो गया था कि कोई मिसिंग है, मिसिंग है। उनको लगा वो कलकत्ते में ही है, फिर लगा इंडिया में ही है, लेकिन जब तक ये समझ में आया कि इंडिया से बाहर गए हैं, तब तक वो अफगानिस्तान पहुंच गए थे सेफ हाउस में। तब अफगानिस्तान में लुकआउट आया, 2-3 उनके लुक्स वहां पे पोस्टर्स बन गए, उनके नॉर्मल लुक, उसमें दाढ़ी मूछ लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, वहां पे उन्होंने लगा दिया वो। तब उन्होंने कहा कि भैया इस लुक में तो पकड़ा जाऊंगा, तो उन्होंने यूरोपियन लुक का धारण किया। गोरे तो थे वो, ठीक है, उन्होंने एक यूरोपियन लुक लिया जो इटालियन लुक था। वो थोड़े इटालियन जानते थे, तो उन्होंने कहा मैं इटालियन जानता हूँ थोड़ा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। और उन्होंने वो लुक धारण किया, उसमें हैट आ गया, सब कुछ आ गया, हल्की मूछ आ गई, एक अजीब सी यूरोपियन दाढ़ी आ गई जो आपका फ्रेंच कट टाइप है, लेकिन फ्रेंच कट पूरी तरह से नहीं है, वो कर लिया। और उनका चश्मा थोड़ा अलग हो गया, फिर उन्होंने अपना टोन बदल लिया और इटालियन में बोलने लगे। तो अंग्रेज वहाँ पे, जो अंग्रेजों की प्रेजेंस थी, वो यूरोपियन को देखेंगे तो वो अपना टोपी उठा के उनको रिस्पेक्ट ही देंगे ना, वो तो ये नहीं सोचेंगे कि ये कौन है, क्योंकि अंग्रेज भी तो एक्सपर्ट ही है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे वो कुछ दिनों का मामला था, वो इटालियन लुक में उन्होंने, जब तक उनको एम्बेसी से थोड़ा बहुत, इटालियन एम्बेसी या जर्मन एम्बेसी तक पहुंचना और वहां से थोड़ा हेल्प लेना पहुंचने के लिए, वो ले लिया उन्होंने, लेके फिर वो Why did he particularly choose Germany? Is it because दुश्मन का दोस्त? Of course, Germany was on the verge of defeating Britain. ब्रिटेन की हालत पस्त थी ब्रिटेन की हालत, वो खत्म होने वाले थे। But he obviously knew about Adolf Hitler as a leader. Of course he knew. सब लोग जानते थे तब तक तो, as a dictator and as somebody and Nazism का ideology. Correct.
लेकिन उन्होंने ना, वो मैंने कहा ना, बोस जो है वो सोच रहे थे अभी इस वक्त, वो आगे क्या होने वाला है उसके बारे में उतना नहीं, वो अभी इस वक्त मुझे क्या करना है वो सोच रहे थे। अभी इस वक्त मुझे, जब मेरा दुश्मन एक पैर पे खड़ा है तो मुझे उसके दूसरे पैर पे मारना है, तो वो गिर जाएगा। और मैं ये करूं कि नहीं, उसका पैर ठीक हो जाए, दोनों पैर पे खड़े हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, उसको पूरा वक्त दूंगा, फिर हम लड़ेंगे बराबरी की लड़ाई, वो नहीं होने वाला है। तो वो उन लोगों में से थे, वो दूसरे पैर पे मारने के चक्कर में थे। अब दूसरे पैर पे मारने के लिए उनको मदद चाहिए थी कि भैया मुझे थोड़ा डंडा चाहिए, हॉकी स्टिक चाहिए, हाँ, और फला चाहिए, ढिमका चाहिए, तो जो मुझे जर्मनी से मिलने वाला है। लेकिन मुश्किल हुआ कि जब वो मिले हिटलर से, हिटलर ने उनको डायरेक्ट सपोर्ट करने से मना कर दिया, उन्हें सपोर्ट नहीं दिया। ऐसा नहीं कि हिटलर ने उनको सपोर्ट दिया, हिटलर ने बोला कि भारत जो है अभी केपेबल नहीं है, इंडिया इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इंडिपेंडेंस। हिटलर का ये मानना था कि इंडिया में फ्रीडम पाने की काबिलियत नहीं है। Okay. Okay. And what was Bose's reaction to बोस this? वाज डिसअपॉइंटेड विद दिस स्टांस, बट हिटलर ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। हिटलर ने कहा लेकिन थोड़ा बहुत जो भी सपोर्ट तुमको चाहिए वो हम देंगे। तो बोस ने वहां पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे इंडियंस, उनको कांटेक्ट किया, उनसे जर्मनी से रिक्वेस्ट किया हिटलर से कि भाई मेरे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर यहाँ पे इंडियंस हैं वो तो हमारे देश के, भाई उनको आप सही बात है जोड़ दो। तो वो उन्होंने किया, तो वहां पे वो उनकी तैयारी की। फिर उन्होंने ये तय किया कि भाई अगर जर्मनी से नहीं मौका मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो जापान से लेते हैं, क्योंकि जापान जो है वो भी अमेरिका ब्रिटेन सबके साथ जंग में वो था और काफी अच्छा चल रहा था उसका। तो वो बोले कि अब जापान जाएंगे। तो वहां जापान जाने के लिए उनको जर्मनी से मदद मिली, क्योंकि जर्मन सबमरीन जो है वो मूव करते रहते थे यूरोप से अफ्रीकन पेनिनसुला से एशियन पेनिनसुला। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे अपने सबमरीन में यहाँ तक पहुँचा दो, जापान तक पहुँचा। हाँ, जापान तक तो नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एशिया के पॉइंट से पहुँचूंगा, फिर वहाँ से मैं वो कर लूंगा। तो वो तैयार हो गए और वो सबमरीन में निकल रहे थे, लेकिन वो सबमरीन पूरी तरह से अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस सबमरीन में अटैक हुआ, उसके फ्यूल टैंक पे अटैक हुआ। तब वहां पे उसको उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन उनको मिली कि एक जापानीज सबमरीन इस तरफ आ रही है। तो उनको बोस ने कांटेक्ट किया और कहा कि क्या हम आपके सबमरीन में शिफ्टिंग आल्सो हैपेंड कि एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन में शिफ्ट हुए, तो जर्मन सबमरीन से वो जापानीज सबमरीन में शिफ्ट हुए और उनको सिंगापुर छोड़ा गया। सिंगापुर पहले अंग्रेजों के कब्जे में था, तो अंग्रेजों की सेना जो थी वो इंडियन सेना थी, ज्यादातर इंडियन सेना ही थी, और वहां पे जो लड़ाई हुई वो जापान ने उनको हरा दिया। तो सारे के सारे वहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर थे, बहुत बड़ी तादाद में प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो वहां पे गए और उन्होंने जापानीज एम्पायर तो नहीं बल्कि जापानीज जो प्रीमियर थे उनसे बात की और उन्होंने कहा कि भाई और कुछ नहीं तो कम से कम हमें ये दो। जापानीज प्रीमियर ने कहा हम आपको पूरा मदद करेंगे, यहाँ तक कि अगर आपकी सेना बन गई और आप इंडिया की तरफ मार्च करते तो भी हम आपके साथ होंगे, हम आपको अपने प्लेन से कवर देंगे, हम बमबारी करेंगे ब्रिटिश पोजीशंस पे और आप अंदर चले जाए, इतना तक उनको दिया। तो सुभाष बोस ने यहाँ से अपने आप को वॉरियर बना दिया, सोल्जर बन गए। सोल्जर का जो डिसिप्लिन, सोल्जर का जो ध्येय होता है। लेकिन उनकी खूबी देखिए कि उन्होंने आर्मी बनाया, उसमें भी उन्होंने अपने आदर्श ढूंढे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। उनके 3 सबसे पक्के जो साथी थे उसमें एक सिख थे, एक मुस्लिम थे और एक हिंदू थे, कैप्टन सहगल, कैप्टन ढिल्लों और शाहनवाज खान। ये 3 उनके जो है स्तंभ थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी लड़ेंगी, औरतें सिर्फ नर्स नहीं बनेंगी। जो अंग्रेजी उसमें क्या होता था, अंग्रेजी आर्मी में औरतें नर्स होती थी, मतलब वॉर की नर्स, लेकिन नर्स। करेक्ट ऑफ कोर्स। इन्होंने उसका रेजिमेंट बना दिया। ये कब की बात है? उसी समय 1942 में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाया। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जो कैप्टन सहगल की बीवी थी, वो बनी उनका रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट में। तो उन्होंने पूरा ये बनाया और उनके अंदर ये जोश भरा, जिस तरह से जो यूनाइट किया कि अपने धर्म, जात और भाषा सबसे ऊपर उठ के उनको एक होना है अभी। और उनके अंदर वो जो जोश भरा ना, वो है लीडरशिप क्वालिटी। उनके अंदर ये जोश भर दिया कि हम
कर सकते हैं अगर हम साथ रहे, एक रहे, अपने धर्म, जात, भाषा, संस्कृति के ऊपर उठकर बस भारतीय बनकर अगर हम कूच करें तो हम ये कर सकते हैं। और वो तैयार थे, हर चीज के लिए तैयार थे। यहाँ पे हम जर्मनी आए, जर्मनी में काम हुआ, जी। जर्मनी, हिटलर ने बोला कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर फ्रीडम एट दिस पॉइंट, केपेबल नहीं है, जो भी उसने कमेंट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको हेल्प कर देंगे, आपको हम जापान पहुंचा देंगे। जर्मन सबमरीन से जापानीज सबमरीन में गए, जापानीज सबमरीन से जापान पहुंच गए। व्हाट नेक्स्ट? सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में उन्होंने अपने क्या कहते हैं जापानीज प्रीमियर से परमिशन ली, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वहाँ पे, वो खड़ा किया, उनको छुड़ाया। हाँ। और उनको वो ऑलरेडी ट्रेन थे, वो ब्रिटिश आर्मी में ट्रेन थे। करेक्ट। उनको फिर उन्होंने घोषित किया कि ये इंडियन नेशनल आर्मी है। पहली बार कोई इंडियन नेशनल आर्मी बना जो देश से बाहर बना, लेकिन बना। इंडिया में तो इंडियन नेशनल आर्मी नहीं थी। ऑफ कोर्स। आपके एक जमाने में आर्मी क्या होते थे? राजाओं की आर्मी अपनी होती थी, वो कोई इंडिया की आर्मी तो नहीं थी, है ना। जो राजपूत आर्मी थे वो राजपूत राजा के लिए लड़ेंगे, मुगल आर्मी मुगलों के लिए लड़ेंगे। वो प्रोफेशनल आर्मी थी, वो कोई इंडिया के पेट्रियटिक आर्मी नहीं थी, कोई एक देश के सेना तो नहीं थी, कोई देश का झंडा तो नहीं था। मगर यहाँ पे एक झंडा भी बना इंडियन नेशनल आर्मी का, और इंडियन नेशनल आर्मी का स्लोगन भी बना, जय हिंद। ये जय हिंद शब्द आया ना, आजाद हिंद फौज बनी, आजाद हिंद फौज बनी इंडियन नेशनल आर्मी, और जय हिंद इनका स्लोगन आया। और आपने अपना झंडा भी तैयार किया, है ना। तो ये पूरी जो इनको एक आइडेंटिटी मिली और उसके अंदर उनको एक प्राइड मिला, वो यूनिफॉर्म पहनने का, जो एक आजाद हिंद फौज का यूनिफॉर्म है। But what do you think Bose understood about the Indian soldiers that other leaders could not understand? No. Because thousands of soldiers, after the Azad Hind government was formed, after the Indian National Army was formed, thousands of leaders who were prisoners of war, he thought कि नहीं, इनको छुड़वाना पड़ेगा, and we'll now make, which is the establishment of the Indian National Army. वो जब हुआ, thousands of soldiers decided to join the INA. What do you think convinced them, and how do you think Bose was? That is where his correct, his passion, his conviction, and his communication. That is why he was his Bose. That is why he's Netaji. Because he could get that into people. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. And they were ready to spill their blood. They were ready to die. Because the ideal was much bigger, ना. आज़ादी शब्द सोचो आप, यहीं से आप जो आज़ादी स्लोगन सुनते हो ना आजकल, आज़ादी, ये वो शब्द है, आज़ादी, फ्रीडम। और देश की दबी कुचली जनता आप पर निर्भरशील है, वेटिंग फॉर यू to take action, to liberate them. Think of all those people, forget the kings and the elites and privileged. Think of the 90% people of that country, or 95% people of that country, who are in dismal condition, who need to be first liberated, then lifted. Right? Let's do it for them. That was the thing. And with that preparation, they marched towards India from the Burmese side. Correct. From the northeast side. Because there the British presence was less. But what they didn't anticipate was that the Japanese cover won't happen in 20th century. Either straight away became a dictator, or over a period of time lost their democracy and became a dictator. Can we Yes. give examples? Yes. Any full African peninsula, whole African peninsula, the entire Latin America, all Asian this thing. हमारे neighbors को देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या हुआ? बांग्लादेश को आजादी मिली, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर बना, फिर मार के पाकिस्तान में जनरल बन गए उनके, वो बांग्लादेश में। पाकिस्तान में क्या हुआ? जिन्ना साहब मरे, उसके बाद जनरल याह्या खान आ गए, डिक्टेटरशिप आ गया ना। उसी तरह से एशिया में चारों तरफ देख लो, आपके एशिया में कहाँ था डेमोक्रेसी? सब जगह तो डिक्टेटरशिप थे। पूरे अफ्रीका को जब कोलोनियलिज्म से आज़ादी मिली, तो उनके जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे वो क्या बने? डिक्टेटर बने, इदी आमीन बने। मैं आर्मी, सिविलियन ऊपर नहीं थे, आर्मी ऊपर थी।
हमारा एकमात्र देश था जिसने इतने कम समय में यह सीख लिया कि जनता जनार्दन है, नागरिक की सोच और समझ सबसे ऊपर है, सारे इंस्टीट्यूशंस जनता की सेवा के लिए हैं, आप जो करना चाहें आप करें, as long as you're following the law and constitution. Army is there to protect you, not to dictate you, not to dominate you. Police is there as a law-abiding. So we have. At least that's what the ideology was. That's why things were built and that's why things were in place. इतने बड़े देश में, इतनी डाइवर्सिटी में कि यहाँ मलयाली बोल रहे हैं, तमिलनाडु में भी तमिल 2-3 तरह से बोल रहे हैं, बंगाल में बंगाली 5 तरह से बोल रहे हैं, इतने डाइवर्स जगह में जहां पे 19th सेंचुरी में भी एक गांव का आदमी अपने गांव के बाहर कुछ नहीं जानता था, उसको खबर नहीं थी गांव के बाहर क्या देश है, वो बोलता था विदेश है, यही कहता था ना, सही बात है ना, ऑफ कोर्स। उसको कैसे पता, कैसे उसकी समझ आई कि मैं नागरिक हूं, मेरा वोट 5 साल के लिए ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा और ये वो नीतियां बनाएगा जो मैं चाहता हूं, जो मेरी भलाई के लिए हो, अगर नहीं बनाएगा तो मैं सवाल करूंगा। और कैसे फिर आपके कल्चर में देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना, फिल्म्स डिवीजन बना, NFDC बना, मैं ये कल्चर की बात कर रहा हूँ, आपका संगीत नाटक एकेडमी बना, साहित्य कला परिषद बना, ये सब लिटरेचर और आर्ट की बात है। IIT, IIM तो आप जानते ही हैं, आपके सारे जो इंस्टीट्यूशंस, आपने इंडिया विद इन आई थिंक 15 years of independence became 7th most industrialized nation in the world. हम अपने एयरक्राफ्ट बना रहे थे, हम अपने स्टील, अपने आयन, अपने ओर, अपने इंडस्ट्रीज, अपने डैम, अपने सारी चीजें हम लोग बनाने लग गए। आप देख लीजिए बाकी देशों को जो इनको इंडिपेंडेंस मिला था, सब अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, सब उनसे लेते थे, कोई अपना नहीं बना रहा था। हमने जब रशिया से मदद भी ली तो हमने खुद बनाया अपना, हमने भिलाई बनाया, उन्होंने हेल्प किया, लेकिन प्रोडक्शन तो हमारा हुआ ना। सो आप कह रहे हो कि बोस भी वही, ऑल ऑफ दैट, तो मेरा वही कह रहा था, आप बोस की बात कर रहे थे, बोस अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो वो इससे कोई अलग नहीं करते, क्योंकि वो भी तो इक्वालिटी चाहते थे, वो भी तो वही चाहते थे। नेहरू से अगर कोई गलती हुई है तो मेरे 3 गलती मानता हूं एज एन एजुकेटर। मैं मानता हूं कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना हायर एजुकेशन पे। नेहरू हमेशा हायर एजुकेशन पे ध्यान देते थे, तो हमारे यहां से जो PhDs निकलते थे, जो डॉक्टर्स निकलते थे, जो सिविल सर्वेंट्स निकलते थे, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट निकलते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, नोबेल विनिंग साइंटिस्ट निकलते थे, वो हायर एजुकेशन था। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन, जो आपका बेसिक एजुकेशन सेक्टर में, हमने उस तरह के टीचर्स या उनके पेन, उनके वो प्रोफेशनल प्रोसेसिंग नहीं पे ध्यान नहीं दिया, तो प्राइमरी एजुकेशन आज भी इंडिया में वीक है। जहां गांव खेड़े में, छोटे तबके में प्राइमरी एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक बोस वुड हैव डन डिफरेंटली? I don't know. These are speculation. Again, speculation. As an educator, as a researcher, as a teacher, as somebody who's जो हो सकता था, read about, मैं हो सकता था की बात कर रहे हैं। नेहरू के जो 3 मैं मानता हूँ और करना चाहिए था। दूसरा जो उन्होंने थोड़ा कम किया लेकिन कम किया, वो था उन्होंने इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया, किसानी पे कम ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे। गांधी कहते थे कि भारत उसके गांव में बसता है, जब इंडिपेंडेंस मिला तो 75 to 80% इन विलेजेस, शहर थे लेकिन उतने नहीं थे। तो गांधी का कॉन्सेप्ट था कि हमको वापस जाना है ग्राम स्वराज में, दैट इज एवरी विलेज विल बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट यूनिट, वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द मार्केट आउटसाइड एंड ऑल दैट। नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दिया, तो वो ऑब्वियसली मार्केट की तरफ ही गया, तो एग्रीकल्चर गॉट लिंक्ड टू द मार्केट आउटसाइड, है ना? तो ये मुझे लगता है ये सेकंड वो है। और तीसरा जो मुझे ये लगता है कि नेहरू वाज ए पैसिफिस्ट, वो शांति के पुजारी थे। उन्होंने ना अमेरिका का नेटो ज्वाइन किया, जो बहुत अच्छी बात है, ना उन्होंने रशिया का ईस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया, जो अच्छी बात है। उन्होंने नॉन अलाइंड एक मूवमेंट शुरू किया, जिसमें जो ना इधर है ना उधर, उनको इकट्ठा किया। उसमें इजिप्ट भी थे, हंगरी और ये यूगोस्लाविया और ये सब आए, तो बहुत सारे देश आए, वेरी गुड थिंग। बट हमारे आर्म फोर्सेस की जो प्रिपरेशन है, वो उस पे मुझे लगता है थोड़ा और ध्यान उस समय देना चाहिए था नेहरू को। हाँ, आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन कम थी। उन्होंने ये मान लिया था कि हमारी आर्म फोर्सेस केपेबल है, ब्रिटिश जो छोड़ के गए उसमें अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे वो हैं, और थे भी,
लेकिन आर्टिलरीज और उस चीज पे उस समय उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा इन्वेस्टमेंट चाहिए उन सेक्टर्स में जो देश में वेल्थ क्रिएशन में फायदा हो। तो स्टील, आयरन, ओर, कोल, इन चीजों में हमको, पानी के उसमें, सिंचाई में, इसमें उसमें सब झोंक दिया। लेकिन आर्टिलरीज एंड वेपनरी में जो चाहिए था, तो इसलिए 1962 में जब चाइना ने अटैक कर दिया, वो भी धोखे से, क्योंकि इंडिया नेहरू के साथ हाथ मिलाया, हिंदी चीनी भाई भाई किया और वहां से अटैक कर दिया, क्योंकि उनको नॉर्थ ईस्ट का एरिया चाहिए था। तो उस समय वी वर अनप्रिपेयर्ड, अंडर प्रिपेयर्ड मिलिटरीली। तो मिलिट्री सिविलियन का रिलेशनशिप में अगर मिलिट्री को भी उतना ही अहमियत उस समय देते तो शायद वो वीकनेस नहीं होती। तो ये जो 3 मैंने गिनवाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को कम ध्यान देना, इंडस्ट्री को ज्यादा ध्यान देना, प्राइमरी एजुकेशन को कम ध्यान देना, हायर एजुकेशन को ज्यादा ध्यान देना, और आपके प्राइमरी सेक्टर्स को ज्यादा ध्यान देना, लेकिन आर्म सेक्टर को कम ध्यान देना। ये 3 जो चीजें हैं, ये नेहरू। बाकी अगर आप देखें तो बोस और नेहरू में के विचारधारा में, वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी मेकिंग में बहुत कम फर्क है। Joyda, very interesting. I think what I want to again bring you back is, what do you think about Bose's death mystery? What could have been possibly happened in terms of Bose's death because of the plane crash? What could have happened? See, either he actually died because he was too energetic, too passionate, too committed a human being to stay away from public life. Yeah. Nobody with that kind of energy, that kind of passion, that kind of dream, that kind of commitment would stay away from it. Could he also have feared If that he was would not have... scared of the British empire, why would he be scared of anything less? आपने ये सोचा है? British Empire was the scariest empire. He was the biggest and the most toughest empire. If he could defy the British Empire, can he not defy anyone else? Of course he can defy anyone else. And someone who is ready to sacrifice his life anyway, at any time, why would he be scared of anyone? ये जो कहते हैं ना कि वो उसके जान को खतरा था इसलिए इंडिया से भाग गए, और अरे जो अंग्रेजों से नहीं डरा उस समय, जब अंग्रेज पूरी दुनिया में राज कर रहे थे, तो इंडिया में अपने लोगों से क्यों डरेगा वो? इम्पॉसिबल। दूसरा ये जरूर हो सकता है, पता नहीं, ये मेरे के अंदर का एक्टर कहता है कि क्या हो जब कोई आदमी अंदर से टूट जाए, क्या हो अगर अंदर आदमी के अंदर बहुत बड़ा निराशा, बहुत ज्यादा निराशा छा जाए, क्या हो अगर आदमी को लगे कि मेरे से गलती हुई या मैं हार गया। क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी की बहुत बड़ी हार हुई मायने की, बहुत बड़ी। And they were not able to completely बहुत लोग decimate the... मारे गए, Correct. बहुत लोग मारे गए। Correct. बोझ नहीं था वहां पे, जिससे आपने मदद ली। जर्मनी बुरी तरह से हार गया, हिटलर एक्सपोज हो गया, नाजीज्म एक्सपोज हो गया, जापान एक्सपोज हो गया, सब एक्सपोज हो गए। अब इन सारी चीजों में आपके अंदर क्या कोई निराशा ने आपको जकड़ लिया? क्या आपके अंदर गिल्ट कहीं से आ गया कि जो आपका प्लान था वो शायद नहीं हो भी तो सकता है ना कि हिटलर के साथ हाथ मिलाया आपने, उस समय जरूरी था इसलिए मिलाया, लेकिन बाद में जब आपको लग भी तो सकता है, इंसान को लगता है ना मेरे से गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, या जापान अगर इंडिया को कैप्चर कर लेता तब क्या होता। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो निराशा, गिल्ट, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मेरा स्पेकुलेशन है, एज एन एक्टर मैं सोच रहा हूँ। लोगों की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर जिंदा है लेकिन क्यों नहीं आए, तो उसमें मिला रहा हूँ कि ऐसा भी ऐसा होता है ना कई बार कि आप एक जो आपकी जिंदगी थी उसको आप छोड़ के चले जाते, लेकिन उसके बाद मेरे पास एक बड़ा सवाल आता है, अगर बोस को कोई ढूंढता सबसे ज्यादा तो वो उसकी बीवी ढूंढती, एमिली। अगर बोस की खोज, बोस की जरूरत किसी को थी तो उसकी बीवी, उसकी बेटी को थी, तो वो ज्यादा पता लगाते। और अगर वो जिंदा होता तो 100% वो 100% नहीं तो कम से कम 60-70% तो पहुंच ही जाते होते, या वो पहुंच जाता होता। वो तो नहीं हुआ, वो तो नहीं लगा पाए पता, और कोई मैसेजेस शेयर कोई नहीं। उन्होंने तो ये मान लिया कि वो मर चुके हैं। वो तो मान चुके हैं ना, वो मर गया है। वरना उन्होंने इतनी किताबें भी लिखी, एमिली की किताबें आई, अनीता की किताबें आई हैं, उनकी बेटी की, कहीं पे तो ये नहीं लिखा हुआ है ना कि वो छुप के यहाँ छुपे हुए हैं
वहाँ ये बन के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे जी। बिटवीन बोस एंड नेहरू, जी। बिकॉज यू मेंशन्ड दे या were- लेटर्स तो एक्सचेंज होते थे जब बाहर वो बाहर थे तो वो। जब उनका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन था, नहीं, वो ना और नेहरू के साथ अपने ये प्लान्स तो डिस्कस नहीं नहीं, किए। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, तो दिस वाज नेवर, तो वो it was एमिली exchange एंड as a हिज friend फैमिली था। वाज आल्सो कोई नहीं। नेवर इन लूप इन टर्म्स Never, ऑफ व्हाट never, इज never. एक्शन गोइंग टू बी। After he died, after that happened, incident 45, किसी को पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि एज एन एक्टर तो मैं ये सोचने को सही मुझे बात अच्छा है। लगेगा, इंटरेस्टिंग हाँ, लगेगा, हाँ। क्योंकि ये सारी चीजें आपको सोचने में मजबूर करती है कि एक निराशा, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, जब मैं गिल्ट फील करता हूँ या मुझे निराशा होती है, तो मैं क्या करूंगा। गिल्ट फील होगा तो मैं शायद मिलूंगा ही नहीं। अगर मैंने आपके साथ धोखा किया, कुछ भी किया आपके साथ, और मुझे गिल्ट है, तो या तो मैं आपके साथ आपके पास ही नहीं आऊंगा, यार वो आ रहा है यहाँ, मैं नहीं आऊंगा। यही होता है ना। अगर मेरे अंदर निराशा है और वो मुझे खाए जा रही है, मुझे डिप्रेस कर रही है, तो मुझे यार कुछ नहीं लेना देना इससे। मैं अब मेरे सामने इसकी बात ही मत कर आपसे, मैं सुनना ही नहीं चाहता। होता है ना ये। तो ये सारे एलिमेंट्स मैं सोच रहा हूँ, अगर वो जिंदा है, सही बात लेकिन है, नहीं ठीक है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ उनके सबसे चहेते, सबसे वो उनके भाई शरद बोस, वो जिंदा थे। उन्होंने नई पार्टी बनाई, नेताजी के नाम पे उन्होंने पार्टी बनाई, आरएसपी, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी बनाई उन्होंने, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उसको चलाया उन्होंने। उनके भाई गांधी जी के अनुयायी रहे, गांधी जी से मिलते रहे, गांधी जी से एडवाइस लेते रहे। मतलब बोस के बाहर जाने के बाद भी वो गांधी जी से वो एडवाइस लेते रहे, गांधी जी से मार्गदर्शक लेते रहे। जब बंगाल विभाजन हो रहा था या बंगाल में कम्युनल राइट्स हो रहे थे, जब गांधी जी यहाँ पे आए राइट्स को रुकवाने के लिए, तो शरद बोस उनसे मिले थे और उन्होंने सराहा कि गांधी जी ने रुकवा दिया सारे राइट्स। जो 10,000 अंग्रेजी पुलिस सेना पंजाब में नहीं रुकवा पाई, गांधी जी ने अकेले जाकर अपने कुछ अनुयायियों के साथ रुकवा दिया वहां पे। तो शरद बोस गांधी के क्लोज रहे, अगर पॉलिटिक्स होती तो नहीं जाते। बोस सुभाष बोस के नाम पे उन्होंने पार्टी खोली, तो उन्होंने तो कोई दलील नहीं दी, आप रखा। बट उनके परिवार ने भी कुछ सर्च करने मैं की कह रहा हूँ कोशिश ना वो करी। वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि अगर किसी के पास खबरें ज्यादा आती तो किसके पास आती? आपकी बीवी, आपकी बेटी सबसे पहले ढूंढ निकालते। आपका भाई जो खुद एक पॉलिटिकल लीडर है और बड़ा जाना माना लीडर है शरद बोस, उसके पास भी होती। तो जब उनके पास कोई खबर नहीं है बोले, तो मेरे पास कहाँ से खबर आएगी? सही बात है, ठीक है। तो मैं तो फिर सबकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ूंगा, सुनूंगा और अपना निष्कर्ष निकालूंगा। कहने को तो मैं सिर्फ यही कहूंगा ना कि मेरे पास जो बातें हैं, जो जापान कह रहा है कि उनका ये इस वाले टेम्पल में उनके एशेज रखे हैं, तो उनकी बात नहीं मानूं। एमिली के साथ कोई वो नहीं हुआ तो ये उनकी बात भी नहीं मानूं, शरद बोस की बात भी नहीं मानूं, तो किसकी बात मानूं? समझ रहे हो? एंड देयर इज नो पॉसिबल वे, ऑफ कोर्स कोई तरीका तो है ही नहीं पहुंचने का। इस क्या पे कोई तरीका है पहुंचने का कि एक्चुअली क्या हुआ था? जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कि अगर जब तक आपने देखा नहीं तब तक आपको पता नहीं। वही तो, भगत सिंह को आपके सामने फांसी दी गई, दफनाया गया, तो आप जानते हैं भगत सिंह है यहाँ पे। चंद्रशेखर आजाद को आपके सामने इस पार्क में गोली से मारा गया, तो आपको पता है कि वो कैसे मरे, है ना। जतिन दास हो, खुदीराम बोस हो, सबके बारे, मौत के बारे में आपको पता है, सब आपके सामने ही सिधरे हैं, है ना। लेकिन बोस आपके सामने नहीं सिधरा है, वो किसी दूर कहीं जंगल कहीं पे कुछ। तो अब इसका कौन जायजा दे सकता है? सही बात है। वही जायजा दे सकते हैं जो उस एरिया में थे, जो कि जापानीज थे। और वो कह रहे हैं कि वो टेम्पल कह रहे हैं, हम तो नहीं थे भाई, हाँ। जापानीज थे वहां पे, जापान के कांटेक्ट में थे वो, तब भी जापान का सपोर्ट ले रहे थे। ये तो नहीं कि मेरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक अपनी निराशा, अपने गिल्ट से वो जापान ही चले गए, वहाँ पे उन्होंने बुद्धिस्ट संन्यास अपना लिया, क्या पता। अब ये तो इमेजिनेशन है मेरी और मैं सोच रहा हूँ ऐसे, और ये कंटेंट बन जाता है उससे। नहीं सही बात है, बट मैं बस वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जब तक आप उस जगह पे या उस पोजीशन पे नहीं हो तब तक आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या था। बट वही है ना, बिकॉज ही वाज सच एन एक्सट्रावेगेंट एंड अ डायनामिक लीडर, व्हिच इज व्हाई वी नो ऑफ हिम, व्हिच इज व्हाई वी रोमांटिक फिगर हो जाता है ना, खास करके इस तरह की आइडलाइजेशन हो जाती है।
करेक्ट. लेकिन श्वेता मेरे को ये बताओ कि his personal life is not very touched upon. Yeah. So when you read about his love interest with Emily, when you read about that he was already visiting Germany and he had met Emily and all of that happened. What according to you did Emily understand about Bose that none of the other people could, and did it actually fascinate you as an actor? Oh yes, because this is student life romance. Think about it that way. A student meets a matured, educated visionary. His charisma, his ideas, his thoughts, his dreams about the world. और उसमें सोशलिज्म की हवा चल रही थी यूरोप में. पूरे यूरोप में सोशलिज्म की हवा चल रही थी. सब लोग ख्वाब देख रहे थे, एक नए समाज बनाएंगे, एक नया इंसान होगा इस ऐसे समाज में, कोई बराबरी का इंसान, कोई ऊंच नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा. उस ख्वाब में दोनों डूबे हुए थे. तो आप सोचो, आपकी आइडियलिज्म और से आपकी दोस्ती से आपका प्यार, आपके प्यार से आपका रिश्ता और आगे जाता है, और आप एक नए जनरेशन को लेके आते हैं इस दुनिया Was में. Emily okay with Bose's plans of quitting his own family life, personal life? She always knew that he is driven by a higher goal. Higher goal क्या है? Higher goal उनका इस जिंदगी में इस समय यही है. तो आप किसी से प्यार इसीलिए करते हो ना कि उसका हायर गोल है. आप किसी आदमी को सोचते हैं इसके बंदा खूबसूरत है, हैंडसम है, लेकिन इसका पर्पस नहीं है जिंदगी का. कहते हैं ना हम लोग, क्या पर्पस है, तो क्या करना चाहता है जिंदगी, क्या है, ऐसे ही चलेगा, नौकरी करेगा, ये करेगा. और एक बंदा है जो ख्वाब देख नहीं रहा है, सिर्फ ख्वाब को साकार करने के लिए लगा हुआ है. उसके पैशन से अट्रैक्ट, क्या यार इसमें बात है इस बंदे, है ना. तो वो चीजें आती है ना आपके अंदर, उस तरह से रिश्ता. और दोनों ने बच्चा पैदा किया. तो यानी कि बोस एक सांसारिक आदमी भी है, नहीं तो कोई बच्चा नहीं करता ना. फिर आप कहते नहीं देश के लिए मैं बच्चा नहीं करूंगा, देश के लिए मैं ये नहीं. आपका बच्चा हुआ, यू वांटेड चाइल्ड, you wanted that life, and you were always telling your family that I am going to be back and we will be together. तो ये सिर्फ But there was a personal cost. Of course. Family life, ordinary life. इतनी बड़े जंग में आप जाओगे, हाँ. पर्सनल कॉस्ट तो होगा ही. हाँ. वो तो हो, कोई जंग में कोई पर्सनल कॉस्ट से बच सकता है क्या? आज के डेट में इंडिया में जब कोई यंग लेफ्टिनेंट या कोई यंग कैप्टन शादी करता है और फिर सरहद में जाता है लीड करने, कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट में भी गोली में वो मर सकता है ना, तो वो एक पर्सनल कॉस्ट ही है. लेकिन जब वो शादी करता है ये सोच के तो नहीं करता कि मैं मर जाऊंगा, वो तो यही सोच के करता है कि मेरा अच्छा फैमिली बनेगी, मेरे बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर होगा, देश आबाद होगा, शांति होगी. वो यही सोचता है ना, देश में शांति अमन होगा, आबाद होंगे, बढ़िया सी जिंदगी होगी. सब यही सोचते हैं. उसका भी यही ख्वाब था, एमिली ने भी यही ख्वाब देखा था, उसके माँ बाप ने भी यही ख्वाब देखा था. लेकिन सब जानते थे कि वो जिस मुकाम पे निकल पड़े हैं उसमें खतरा तो है, और खतरा मोलने के लिए वो तैयार है, तो हमें भी. And he was prepared to give up that personal life because he had a bigger ambition in place. Absolutely. तभी तो आप उनको नेताजी कहते हैं. सबको थोड़ी आप नेताजी बोलेंगे. जो सिर्फ अपनी छोटी सी जिंदगी में डूबा हुआ है उसको आप थोड़ी नेताजी बोलोगे. जो लीडर ऑफ मैन किसको बोलते हैं कि उनके जिंदगी के एग्जाम्पल से आप सीखते हो, उसको आप लीडर ऑफ मैन बोलते हो. वो उदाहरण बनते हैं आपके लिए, है ना. उनके लिए आप कहते हो देश के लिए सब न्यौछावर कर दिया, अब यही कहते हो ना. तो तब जाके वो लीडर ऑफ मैन बनते हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ न्यौछावर कर दिया. लेकिन अगर कभी आप एमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या अनिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उन्होंने अपने बाप को खोया, अपने प्यारे माशूका, अपने साथी को खोया, उनकी जिंदगी में वो नहीं आ पाए, तो वो उनके लिए कितना बड़ा लॉस था. तो अगर उनके तरफ से भी आप कंटेंट क्रिएट करो तो आपको दूसरे तरह के इमोशंस मिलेंगे. आपको देशभक्ति के सिर्फ इमोशंस नहीं मिलेंगे, आपको पर्सनल लॉस का इमोशन मिलेगा, है ना. ये सोच. But what does it do you, because we're talking about Bose and because we're talking about his story, does his relationship with Emily and him having a personal life, or rather the quest to have a personal life, make him more human, or makes everybody human? Everybody is human. कोई human नहीं है. नहीं, but just because we sort of neglect a few aspects of वही मैं कह रहा हूँ ना, in terms of कि नहीं मेरा I am just driven. कई बार क्या होता है
you know that Yeah. you are driven towards a particular purpose. आपका higher purpose ये है, आपका ambition ये है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, which always comes at a personal cost, which 100%. always comes. 100%. अगर आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और आपको एक पद पाना है, तो कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, ये तो गिवन है. या तो पर्सनल रह पाएगा या प्रोफेशनल रह पाएगा. दोनों अगर बैलेंस करना है तो दोनों कम कम हो. 100%. Is something that we always are used to believing. कि यार चल ठीक है, you're running a company, you're running a very successful company, you're a creator, you're an actor, ये वो whatever. You're great with your ambitions, you're great with your goals, you've achieved most of them. But somewhere along the line, you neglected your family, you neglected शिकवा your है, friends. कुछ गिला है, कुछ regrets है, कुछ छूट गए. सबके है ना. So वही मैं कह रहा हूँ कि if we look at the whole story from say an Emily's life or say from Anita's life, what do you look at? Well, I look at a missing father, a missing partner, missing a life which could have had an alternate reality, an alternate direction. Suppose Bose would have continued as Congress president. Think about it. आज सोचते हैं, speculate करते हैं. He would have continued. He was a very popular president. Unanimously elected twice. And had he continued, again, not to obviously pick a side. This is obviously not the intent of this episode. The episode is to obviously talk about. no, I'm speculation है ना. हाँ, आप कह रहे हो ना. speculation है. तो सही वो बात है. अनिता और एमिली हाँ. की जिंदगी में. हाँ. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि we're not obviously trying to pick a side. We're just trying to talk about Bose and his stories and what the stories were. Of course, a lot of, for example, his death was a mystery. हम speculate कर रहे हैं कि अगर मान लो Bose अभी 47 में return कर जाते, तो क्या होता. तो it's obviously not picking one particular side over the other. It's basically discussing Bose as a veteran fighter and talking about what he did for the India's independence. Which brings me to my sort of next segment, which is the alternate India segment. Let's just probably do a rapid fire and understand what are your thoughts on the alternate India. Sure. What if Bose came back in 1947? Where do you think he would have positioned himself in independent India? I think he would have positioned himself in creating a robust defense system. He would have also given himself into building a society which strived for socio-economic equality at a very strong level. He would have also been an educator. I think he would have, because he had cleared ICS, so he would have taken great interest in bringing, in policy making, in creating bureaucrats and stuff like that, because that would have been wonderful. But given his expertise in war and war tactics and building soldiers and stuff like that, he would have made an excellent, I would say, leader of the defense forces. So defense force is one aspect. Civil service is another aspect where he could have probably contributed a lot. But more than that, I think his ideology, being a socialist, I think he would have focused on trying to intervene, because he was also an anti-establishment. So ऐसा नहीं कि वो हर चीज सरकार के पक्ष में करते हैं. अगर उनको लगता है कि समाज में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, he would have probably gone into deeper into society and fought the government, fought the establishment for people. So he would have been a people's man. Got it. Bose would have been a people's hero and a people's leader and a people's man. What do you imagine Bose would have thought about India we eventually built? For the longest amount of time, I think he would have been disappointed because we struggled. But he probably would have understood, if he was as sensible, intelligent as I think he is, that this country, the people, has lot of contradictions. Lot of contradictions. यहाँ सबका भला हो, सिर्फ मेरा भला तेरा भला ना हो. बट वो जो टग ऑफ वॉर इंडिया में है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, और वो किससे ज़्यादा करप्शन से. हम लोगों के जिंदगी डीएनए में जो करप्शन घुसा, मतलब आज़ादी के पहले 10-12 साल 15 साल के जो एक नेशन बिल्डिंग वाला दौर था, जिसमें हम एक सपने में थे, हमें आज़ादी मिली है, एक रोमांटिक सपने के अंदर थे, नेशन बिल्डिंग में अच्छा कदम उठा रहे थे. उसके बाद जो धीरे धीरे हमने कहा यार भीड़ बहुत है, आगे निकलना है, तो भैया पैसे खिला के, तो भैया मुक्का मार के, तो भैया इसकी शर्ट खींच के, तो भैया इसको अड़ंगी मार के,
ये जो हम लोग बन गए ना, उससे तुम डिसअपॉइंटेड होते। But was he more righteous or was Gandhi more righteous? What according to you? What according to you is the right way to look at it? he was absolutely righteous, and so was Gandhi. Gandhi's righteousness was based on his philosophy. Philosophy, हाँ. So Satyagraha was a philosophy. Correct. Satyagraha is not just this thing. It's a philosophy. जैसे मैंने कहा, Gandhi believed the mean is as important as the end. He believed means is. He believed that we need to reach the end, political end. And his idea also was to reach the end at any cost. Yeah. Which is why he. But that cost should not cost the nation. No, See, of course. But then he obviously wanted alliance with Germany. वो तो that है. did not happen. Strategy. Went to Japan. That was a strategic mean. पाकिस्तान so political है. Army is political. Uniform पहनते लेकिन वो नेतागिरी करते हैं. देश वही चला. हाँ, ज़्यादातर देशों में आर्मी धर्म के मजहब के उसमें भी चलती है. आर्मी becomes religious. ईरान हो यहाँ हो. India was a country where, thanks to our nation founders, and that's both included, that the army remained secular and never tried to interfere in politics. उन्होंने अपने जो समझ है कि we are the protector of the nation, we are not the user of the nation, ये रखा. कितने ही समय टाइम आया जब there were threats within the nation, बहुत सारी चीजें हो रही थी. They could have come march to Delhi and taken over and said कि अब से हम, कभी नहीं किया. So the army leadership, thanks to the constitution and constitutional propriety, army leadership remained constitutional. एक आर्मी का जो हेड हमेशा रहा है वो constitutional strong. Which is probably the biggest strength that India till date has. Always. Which is not मैं यही तो कह as रहा हूँ. compared to other countries. ऐसा देश, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी, कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है डाइवर्स जो टूटा नहीं है. कोई नहीं है. युगोस्लाविया इतना छोटा सा देश था, 4 टुकड़ा हो गया उसका. बोस्निया, सर्बिया, correct. क्रोएशिया, अल्बानिया, फलानिया, निया, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. इंडोनेशिया ईस्ट तिमोर बन गया, ये बन गया, वो टुकड़े टुकड़े सब देश, सब लोग. सुदान, ईस्ट सुदान, वेस्ट सुदान. इंडिया जितना बड़ा देश जिसमें आपके 10 बड़े देश घुस जाते हैं. और कितनी भाषा है, कितने कल्चर, अब गिन भी नहीं पाएंगे. Of course, अनगिनत. तो बाकी देशों में तो 1 भाषा 2 भाषा है, ज्यादा से ज्यादा 3 भाषा, ज्यादा से ज्यादा. हम क्या है यार, भाषा के अंदर भाषा है, सबसेक्ट्स हैं, और हमारी आपस में उतनी बनती भी नहीं है. ऐसा तो है ना. हम कहते हैं यार तो वो तेरा खाना भी कोई खाना है, मेरा खाना खास नहीं खाना है. अरे तुम वो मसाला लगाते, हम ये मसाला. अबे तुमको कपड़े पहनना नहीं आता, हमको देखो, तुम्हारी शादी ऐसी होती है, हमारी ऐसी होती है, तुम ऐसे पूजा करते हो. इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है. बावजूद उसके अगर हम एक देश बन के, एक आवाम बन के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसके लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स को कितना बड़ा सैल्यूट देना होगा. एंड बोस इज अ फाउंडिंग फादर. सारे आइडियल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये तमाम फाउंडिंग फादर्स और उनको इंस्पायर करने वाले जो हमारे देश में शुरुआत से एंशिएंट टाइम से रहे हैं, उनको आप देना होगा. आपको बुद्ध को सैल्यूट करना होगा, आपको कबीर को, आपको नानक को, आपको बुल्ले शाह को, all founders included. उनके स्पिरिचुअल, आपको चैतन्य को, आपको मीरा को, उनके स्पिरिचुअलिज्म, उनके फिलोसफीज ने आपको इन्फ्लुएंस किया. आपको रामकृष्ण परमहंस को, विवेकानंद को. Can you talk a little about the Bose Network? Well, the series. Yeah, the series that's coming out. Well, Bose Network is very interesting that we have tried to create a micro drama, which means that no one has to sit in front of the TV at home or go to a movie screen buying a ticket and all. In their hand, in their device, they can actually visit journey of, because it's based on a particular period of Bose's life. From the time when he was house arrested, from the time he escapes, the time he journeys, all the way to Germany, then all the way to Singapore, forms this thing, and is about to attack the British force. And then he gets the news that it's been defeated. So this whole journey has been captured in microdrama, so that you have a sense of adventure, but you also have a sense of the politics of that time. You also have a sense of what patriotism meant, really. You also have a sense of what sacrifices one has to make for a nation, for a society, for people to be uplifted. And how you have to balance everything. How your family, your love interest, your material interest, your
professional interests, your political, all these things have to be balanced. And yet, when it comes to taking a stand, what kind of stand a human being needs to take, how to find a purpose in life, all of that is encapsulated in this. But the idea of actually having and going through the process of having a network, Yeah. how encapsulating is that for you? Well, it's very interesting that because Bose's whole journey escape was based on a network. As I said, he created a network where information was exchanged, things were set up, things were devised to achieve something. And that happened only because of the network. Each one with his own skill set, cunningness, smartness, knowledge contributed. Not everybody was a warrior. Not everybody was a politician. But they all contributed in their own way in the network. So Bose knew how to use each person's skill sets and all. And he used each one of them. But why make a microdrama? Why not make a film out of it or a show out of it? Well, I think that because there's a whole lot of people in this generation and the earlier generation also now, in a given day, are in a constant mode of travel. And when they're traveling, I've seen all of their eyes fixated on the phone. Fixated on the phone. And there's sounds coming out of the phone. They are watching reels after reels after reels. They are no more reading newspapers in trains, planes, on automobiles. They're no more talking to each other. They're only watching. Their eyes are on the phone. Correct. So something is there in the phone which is capturing their thought and imagination. Now, suppose they're watching something irreverent, something which is surface, something which is not which is going to really educate them or uplift them in any way. They're just doing it for entertainment. Now, suppose a certain entertainment comes, which is entertaining, which is engaging, which is interesting, and yet it also somehow gives them a new insight, gives them shows them a new light about what patriotism is and how this life that you're leading now, sitting in this metro going to that place, how this has come to this because of the sacrifices, because of the efforts, because of the strategy, because of the policy, because of the thoughts, ideas and stuff applied by a certain kind of people. So be aware of that, respect that, and be worthy of that. What is my complaint, if I have a complaint about my India, is we are not worthy of those who gave us this freedom. We are not worthy of those who dreamt of an equal and just society. We are not worthy of those who wanted a country where people will forget their small differences and help each other. Are we worthy of that? Is my complaint. So this kind of series, when it comes in your hand and you're watching it, It delves into it. it tells you, it gives you a glimpse of what they sacrificed and what they went through for you to be in this position. Got it. And one last question. If Bose were in front of you Yeah. for like 5 minutes, 10 Yeah, minutes, what is that one question you would ask him? I would ask him that, was it possible for him to join the bureaucracy, because he had given ICS exam, and brought about some change from within? Would he have been able to influence as an ICS, British ICS, to bring about a policy, bring about a law, bring about a change in the British insight? Would he have been able to do that? Is it possible? Like now when I think of an activist, and I feel if he would have joined the government also, if he would have joined the bureaucracy, would he have been able to use his education, thought, idea, this beautiful, from within and bring about some change? That's a thought. That you can bring about some change from within also. It is possible. No? So would he have been able to do that? That would be my question to him. So you gave up the ICS, you went into politics, then you went into a warrior mode. But would you have been able to do, using your education, your intellect, your dream, your vision, would you have been able to create some? Inspired by you, would other Indians also would have joined and tried to create a whole army of bureaucrats within the British government whose policies towards India would have changed, could have changed? I don't know. What are you looking forward to in the next 6 months of the year? 5 months? 4 अभी months of इसी the year? महीने देख लो, आज मैं जा रहा हूँ कलकत्ता, क्योंकि एक बंगाली फिल्म कर रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसका, मतलब टीनेज में जो
अंदर जो आपके अंदर एक मचिज्मो भर गया है, अपने अंदर आपका जो मिसडायरेक्शन टीनेजर्स के अंदर हो गया है, वायलेंस के प्रति, लड़कियों के प्रति नज़रिया, वो सारे वो कैसे किसी फैमिली को ख़त्म कर देती है, उसके ऊपर फिल्म है। उसके लिए जा रहा हूँ। फिर आने के बाद वहाँ से आऊँगा तो मेरे 3 नाटक हैं। एक है ज़ेन कथा जो कि बोधि धर्मा के ऊपर है, जो बोधि धर्मा जब साउथ इंडिया से चाइना गया था और शाओलिन टेम्पल इस्टेब्लिश किया था, उसके ऊपर है। फिर डांस लाइक ए मैन करके नाटक है जो मैं करता हूँ, एक भरतनाट्यम डांसर के ऊपर है, वो है। फिर ज्योतिबा फुले का लिखा हुआ एकमात्र प्ले तृतीय रत्न करके, थर्ड, उसके शोज हैं। फिर जियो हॉटस्टार में सितंबर में रिलीज हो रही है नई सीरीज जिसका नाम है अली बाबा और 40 भूत। एक लाइन जनता के लिए कर ही सकते हैं यार, जॉयदा कम ऑन। टोनी या गला भी इसमें वो जो बेस है ना। क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं, एक लाइन कर दो। अभी जो ट्रेलर में क्या देख रहे हो? हाँ, वो मैं ही हूँ, मैं हूँ। ए टोनी इधर देखो, तो उस वाले खराश में। डू यू डू समथिंग फॉर द बैरिटोन? नहीं, ये तो खराश है। और दूसरा वॉइस भी कभी कभी होता है, मैं जैसे इसमें कर रहा हूँ तरह तरह के, रेड स्कल कर रहा हूँ जो कि विलन है इसमें, जो कैप्टन अमेरिका का मेन विलन है, उसमें मैं वो तुम्हारे लोग ये कर रही है ना, उनको मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, उस तरह की आवाज निकालता हूँ उसमें। तो ये उस तरह बहुत बेहतरीन है ये। हाँ, तो इसे 2-3 तरह की आवाज निकालते हैं। फिर टोनी की आवाज निकालना पड़ता है जो कि थोड़ा सा एरोगेंट है, अपना टोनी स्टाइल है। कैप्टन, क्या बात है कैप्टन, तुम तो आज बड़े फदक रहे हो, हाँ, इस तरह का। ये फ्यूरी का होता है कि मैंने जो कहा वही होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं, उस तरह का फ्यूरी का आवाज निकलेगा। तो ऐसे तरह तरह के निकालना पड़ता है मुझे एक स्टोरी के अंदर आवाज है। ये बड़ा इनक्रेडिबल चीज है। एक लास्ट वॉइस कर दो, उससे एंड करेंगे। अरे वॉइस आप हाँ, एक जो आपकी इच्छा। ये स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे थे ना आप, ये लो हो गया स्पॉन्टेनिटी। मैं एनिमेशन और उसकी बात वो करता था मैं कि अभी आपने बोला था कि स्पॉन्टेनियस आदमी हूं। पपेट एनिमेशन करता था, उसमें एक तोताराम का करा दो। तोताराम, हम तोताराम बोल रहे हैं भैया। अरे आओ हमारी दुकान में आओ। अरे यहाँ जो तुमको सामान मिलेगा ना, वो कहीं और दुकान में नहीं मिलेगा। Joyda, it's been a pleasure. Thank you so much. A lot of things that I could agree, I could disagree. All calls for a good conversation. Yes. Thank you for being a sport. And whatever we discussed about Bose, again, coming back to the same ideology, coming back to the same fact that this was just about Bose and his story and the show that's coming out. It's nothing to do with the current political scenario. No. And that is essentially the idea. The idea was to talk about Bose, what he did, what you think what he did was right or wrong. So that was the idea of the show. I hope I was able to do justice to the conversation. Absolutely. Whatever your thoughts are from this conversation, आपको इस शो पे कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है? आप मेरे को देख के बोल सकते तो और ही बढ़िया, कैमरा पे देख के बोलते तो माशाल्लाह। मैं तो आपको देख के बोलूंगा। बताइए। आपके साथ जब मैं बात कर रहा था तो मुझे मेरे डीयू के दिन याद आ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जो ड्रामेटिक सोसाइटी के जो बंदे थे ना, बंदिया, हम लोग ऐसे बैठ के बहुत गपाते थे और तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह के ख्वाब डिस्कस करते थे और दुनिया फतेह कर लेते थे हम लोग बातों बातों में। क्योंकि एक तो अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था, वो निकालना था, तो निकालते थे हम एक दूसरे के साथ। और वो यारी बाद में मेरी कभी नहीं बनी, जो ड्रामेटिक सोसाइटी के रूम के अंदर हमारी यारी थी ना, जो हम एक दूसरे को अपने, उसे कहते हैं ना, पूरा खोल देते थे। छुपाने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ था। तो आपके साथ कुछ हद तक मैंने वैसा ही किया। I feel it's probably the greatest compliment one could ever receive. कि अगर मैं आपको अपने डीयू के दोस्तों के बीच अगर आप वहाँ प्लेस कर पाए खुद को यहाँ पे, it is an absolute honor. So thank you so much for giving your time. And to the audience watching, thank you so much for taking out time and doing this. The rest of the details will be in the description. Please check that out. Meanwhile, you're here. There's a second channel called Deepak Parekh Clips where we post short snippets from the main episode on that channel. Subscribe to that as well. आपको ये सब पता है, मैं रोज ये सेम आउट्रो करता हूँ, आपको ये सब बिल्कुल पता है, तो जाके कर लेना। बाकी मिलते हैं next week, same time, Friday 6 PM with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.